3D Studies. This is me Adish Shrivastava and I welcome you all guys to this amazing YouTube channel. Today we are gonna and to understand the basic amazing subject that is going to be little bit friend of math, and the answers are coming right in the comment that are consist of your physics. As we are aware subject physics, so today we are going to begin. As you are aware and you can see on the board, it's written about something light, reflection, refraction, and even though dispersion. What is all this thing? You'll be surprised. Let me clear your doubt over here. We are going to begin and understand chapter number 1 of class 10th physics. But if we talk about through the NCERT, this consists chapter number 10. So we are going to understand today's chapter light, reflection and refraction, and we'll understand each of the interpretation of this topic and we'll master out this amazing interesting chapter. So are you guys ready? Before we go begin, I would like to tell you that this chapter I bought for you all because in the comments of biology class 10th, where I talked a lot about life processes and their basic kinds and subtopics. So in that particular video, there were many comments regarding physics, that please bring physics for us, as it is somewhat a difficult chapter. Number 1 it is really, I hope so, I feel that. So that is why we are now today going to understand this amazing chapter. So let's begin without wasting any of the time. Let's come upon the screen of light, reflection and refraction. So friends, when you see the word light, आपके माइंड में क्या आता है? जो पिक्चर आपके माइंड में बनती है, just write in the comment box. So I can assume कि आप लोग अभी तक not even though just understanding the chapter, but before that आप light के बारे में क्या सोचते हैं? Then we'll understand कि what actually light mean in our day-to-day life, because light is not is only recommended or in a closed box. We are seeing, जब भी अगर आप ऐसी लाइट पूछे without just studying this particular chapter, so आपके लिए लाइट एक केवल वो लाइट जो आपको स्टडी में मदद करती है and somewhat जिससे हम देख सकते हैं. Yes, you all are right, but लाइट एक यहाँ तक ही सीमित कह सकते हैं नहीं है. Light is so big, and if we go through the understanding light, it will never be stopped. So we'll understand the basic thing of light, what comes under the light. Hope so understand. So when you listen the word light, some the words just come to your mind, like you feel shadow. First thing you feel shadow, and then question is starting occurring. क्वेश्चन कैसे होते हैं? दैट शैडो तो है, बट क्या चीज है शैडो? वो कैसे फॉर्म होती है? उसके बेसिक फैक्टर्स क्या है? उसका साइज कैसा है? उसका शेप कैसा है? एंड दीज क्वेश्चन वेरी वेरी अकर्स. दूसरा क्वेश्चन क्या होता है लाइट से? रिफ्लेक्शन, जो कि जैसे कि आप लाइट के सामने खड़े हो, लाइक यू हैव अ मिरर, ठीक है, एंड यू सी कि लाइट को मिरर रिफ्लेक्ट करता है. As I am talking about a plane mirror, not a spherical mirror, alright? So don't compare it that. See, if we talk about plane mirror, अगर हम plane mirror की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है? सिंपल, लाइट रिफ्लेक्ट करता है. एज वी हम प्ले भी करते हैं मिरर के साथ बहुत ही, और हमें पता भी नहीं होता कि रियली क्या ये रियल में रिफ्लेक्ट करता है. बट आपको यकीन नहीं होगा कि हम लोग ये करते हैं, लाइट से प्ले करते हैं, लाइट में शैडो अपनी बनाते हैं एंड उससे बहुत सारी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करते हैं. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब हम ये पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे तो इसमें से 95% चीजें ऐसी होंगी जो कि आप अपनी एक्टिविटीज में, अपने प्ले में यूज कर चुके होंगे, एंड समवॉट जो 5% होगी वो आपको ध्यान में रखना है कि इसका प्रोसेस क्या है. बाकी सब आपको पहले से ही लाइट के बारे में पता होगा. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इवन दो इफेक्टिव चैप्टर होने वाला है आपकी पर्टिकुलर माइंडसेट को और ही अच्छे से ग्रोथ कर देने के लिए. होप सो अंडरस्टैंड.
When you listen the word light, you just go through the word straight line. आपने देखा है जब आप टॉर्च को ऑन करते हैं क्या होता है, आपको अज्यूम होता है कि जो टॉर्च में से जो लाइट निकली उसकी जो रेज है वो कैसे जा रही है, इन अ स्ट्रेट फॉर्म. तो लाइट से ये भी चीजें हमें पता चलती है. कहीं पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहीं पे कोई चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, कहीं पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. जैसे कि कहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट रिफ्रैक्शन. ऑलराइट, कहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है? वाटर, जो कि नदियां होती हैं, somebody has seen. As you can have an example, आप एक ग्लास लें. Let me tell you by just cleaning the board. Like you can take a glass. आपने एक ग्लास लिया, उसमें आप पेंसिल को डालिए. Keep your pencil. और जब पेंसिल को डालेंगे तो आप अज्यूम करेंगे कि जो पेंसिल आपने ऐसे डाली होगी वो थोड़ी सी टिल्ट हो गई होगी. टिल्ट का मतलब टेढ़ी हो जाना. बस इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं. और रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब एक प्लेन सरफेस से कोई भी चीज आके टकराती है और वो उसी डायरेक्शन में सेम मीडियम में थ्रू आउट कर दी जाती है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं. सिंपल. बट डोंट वरी, हम इसे बहुत ही अच्छे से ब्रीफ में समझेंगे. होप सो दिस मच क्लियर अबाउट लाइट, क्योंकि लाइट से ही हमारा चैप्टर बिगिन अप होता है. तो फिर लाइट का मीनिंग समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. लाइट की अगर वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लाइट, सो वी कैन जस्ट राइट about the light. What we can write? Simple, we can just understand the definition of light by what? Because as we know, light is a form of energy that enables us to see. ये बहुत ही छोटे बच्चे से हमें पता है कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिस वजह से हम देख सकते हैं, जिस वजह से हम कोई भी ऑब्जेक्ट, हमारी सराउंडिंग को, हमारे एनवायरनमेंट को जो कि हमें सराउंड करके रखा है बहुत अच्छी तरह से, उसे देख सकते हैं. सिंपल. और हमें ये भी पता है, आपने बहुत जगह पे देखा भी होगा कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and that can travel through a medium and even though as well as vacuum in a straight form and somewhat कहीं कहीं पे यहाँ पे लिखा है वेव की तरह फॉर्म होता है. सो लाइट का जो नेचर अगर आपसे पूछा जाए तो लाइट का नेचर डुअल होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग टू यू. इफ इन द एग्जामिनेशन हॉल यू आर आस्क्ड दैट व्हिच नेचर लाइट कंसिस्ट, या फिर नेचर अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइट कैसे मूव करती है, बस सिंपल. सो आप कहेंगे लाइट ना कि स्ट्रेट फॉर्म ना कि वेव, लाइट दोनों तरह से मूव करता है. एंड ये हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है. एंड इवन दो ये दोनों तरह से मूव करता है, ये चाहे वो स्ट्रेट हो चाहे वो वेव हो. दैट इज वाई इसका जो नेचर हमने ढूंढ के निकाला हमारे साइंटिस्ट ने, वो होता है डुअल नेचर. इसका डुअल नेचर होता है. होप सो दिस मच क्लियर. एंड इफ यू गो थ्रू स्पीड, लाइट कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है थ्रू द वैक्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, वैक्यूम से लाइट की जो स्पीड होती है दैट कंसिस्ट ऑफ योर 3 into 10 to the power 8 meter per second, and this needs to be learned by us. Hope so it's amazing, guys. Now let's come that what actually, from where actually our chapter begins. So as we know, our chapter begins with reflection and rarefaction. If we go through understanding the term reflection, what comes to your mind? You come to mind as a mirror. आपके दिमाग में मिरर आता है. एंड वो रिफ्लेक्शन आती है कि जो अब आपने एक एक्टिविटी करी होगी प्ले में, कि आपने टॉर्च को मिरर पे डाला और वो मिरर उस टॉर्च की लाइट को रिफ्लेक्ट करके, जहां से आपने जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहां से मैंने टॉर्च डाली और ये आपकी वॉल है, यहां से मैंने टॉर्च की लाइट को डाला एंड वो मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट करके बाउंस करके वॉल की दूसरी कॉर्नर्स पे सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हुई, उसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. इफ यू गो थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या आ सकती है? सिंपल, दैट इट इज द bouncing what? Bouncing back of light. Simple. Reflection is what? Reflection is nothing but it is the bouncing back of light. Very easiest one है ना. Simple. as मैंने आपको explain भी कर दिया.
और अगर हम बहुत अच्छे से एक प्लेन मिरर को रख लें, जैसे कि ये हमारा प्लेन मिरर में, तो क्या होता है, लाइट पड़ी, लाइट गई, रिफ्लेक्ट हुई। सो इसको समझने के लिए मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। जब किसी प्लेन सरफेस पे कोई भी लाइट आके पड़ती है, व्हाट आई मीन पड़ती है, आती है, इंसिडेंट्स करती है, ठीक है, एक प्लेन मिरर पे, उसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि ये आई और ये गई, आप लोग देख सकते हैं कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है। सो जो आती है प्लेन मिरर पे, उससे हम लोग जो नेम देते हैं, दैट इज सिंपली कंसिस्ट ऑफ योर इंसिडेंट रे। जो रे एक स्ट्रेट पाथ से एक नॉर्मल और अ प्लेन मिरर पे पड़ती है, इंसिडेंस करती है, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। बट इफ वी टॉक अबाउट, अपार्ट फ्रॉम दिस, वी टॉक अबाउट द रे विच जस्ट बाउंस बैक, जो चली जाती है उस सेम मीडियन से, ये हमारा सेम मीडियन है और ये हमारा सेम पाथ है, उस सेम मीडियन सेम पाथ से जो रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस कर जाती है बैक में एज एन सेम मीडियन, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। बहुत आसान है गाइस, कोई भी कंफ्यूजन आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर बस समझने का, क्योंकि लाइट के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पहले से भी जानते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें बस हमें माइंड में रखनी है, और हमें बस इसमें ऐसा है कि हमें अपना माइंड से ऐसा बना लेना है कि यस, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, एंड एवरीथिंग। सो वी नो अबाउट दिस चैप्टर, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एनीथिंग। ऑलराइट, क्या चीज मैंने बताई, जो रे आई उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे गई उसे कहते हैं reflected ray. Hope so this much clear to you all. Now, as this much is understand, okay. So हमने क्या भी बताया आपको, एक प्लेन मिरर है, उस पे एक रे इंसिडेंस हुई और एक रिफ्लेक्ट हुई, और इन दोनों के बीच में, क्योंकि मीडियन तो सेम है, उसी मीडियन से एक स्ट्रेट लाइन को बनाया जाता है। Let me show you again, then you can understand more easily. Okay, see what happens. Like we have a plane mirror, then here we have a incident ray. Just a second. Yes, we have a incidence ray, then we have a reflected ray, और इसी से हमारी बनती है नॉर्मल, जिसे हम लोग नॉर्मल एक स्ट्रेट लाइन, या फिर हम 90 डिग्री समझे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, 90 डिग्री कहते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल। नाउ सी व्हाट हैपेंस। यस, this consists of your normal, this is your incident ray which I am representing with I, and this is your reflected ray which I am representing with R. So नॉर्मल जो कि आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। सो नॉर्मल के जो बीच में एंगल बनता है इंसिडेंट से नॉर्मल में, इंसिडेंट टू नॉर्मल, उसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ आई, जो कि आई इवन दो रिफ्लेक्ट इंसिडेंस है, सिंपल, बहुत ईजी है। आई इज सिंपल कंसिस्ट ऑफ योर इंसिडेंट रे, और जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच में बनती है, वो होती है आपकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि रिप्रेजेंट करती है आपके रिफ्लेक्टेड रे को। बहुत आसान ना। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर अप कर देती हूँ आपकी, लाइक वी हैव सेम थिंग, वी हैव नॉर्मल ओवर हियर। सो ये एंगल आपका हो गया एंगल आई, ये एंगल आपका हो गया एंगल आर। कहाँ से बनती है, नॉर्मल से। क्या चीज होती है, रिफ्लेक्शन हियर एंड इंसिडेंस ओवर हियर। And this is needs to be very clear to you all guys, that keep this thing which I am going to tell you in a box, that angle I will equal to angle R. अगर आपने एंगल I को ढूंढ लिया है, सो बहुत आसानी से एंगल R को, या फिर अगर आपको एंगल R बहुत अच्छे से नोन है, तो आप एंगल I को भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं अगर क्वेश्चन में आपके पूछा गया है। So this much clear to you all. Now let's jump upon the topic लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है और उसे अच्छे से समझ लिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किन चीज़ों से हम रिफ्लेक्ट होती है चीज़ें, जैसे नेचुरल कुछ चीज़ें होती, क्रिस्टल, वाटर, आइज, sunglasses and many others. If you want to write, you can write it. Now let's come upon the topic laws of reflection. So friends, in this particular chart of light, you're both
whether it's a reflection or a refraction, दोनों की laws और बहुत अच्छे से definition given है. If you want to write, you can write it from here. But right now we are going to understand about reflection and बाद में हम समझेंगे refraction के बारे में. So let us put eye upon the topic reflection and just do not see the topic refraction. See, reflection के बारे में हमने पहले भी जान लिया है कि bouncing back of light of the rays in the same medium when they fall on the smooth shiny object. As an example we get as mirror. Hope so this much clear and ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है. पहला लॉज जो कि बहुत ही ज्यादा स्टार मार्क है, ये फिर इंपॉर्टेंट है कि इंसिडेंस रे जो कि आई से रिप्रेजेंट होती है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल always lie in the same plane at same point. ये क्या मैंने कह दिया, let me clear. पहले आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि सेकंड है उसे आप पहले समझिए, फिर फर्स्ट को मैं समझाऊंगी, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. व्हाई आई एम सेइंग दिस, सी सेकेंड लॉ में क्या कहता है कि एंगल ऑफ द इंसिडेंस रे इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये क्या चीज है, मैंने पहले भी बताया था, ये आपकी नॉर्मल, ये आपकी इंसिडेंस रे, ये आपकी नॉर्मल, ये आपकी रिफ्लेक्शन. सो यहाँ पे जो एंगल आई जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज इक्वल होगी एंगल ऑफ आर जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और वही चीज लॉ ऑफ सेकेंड में लिखा है. बट अगर हम लॉ नंबर 1 जो कि यहाँ पे कुछ अलग सा कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो इंसिडेंस रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये एक प्लेन सरफेस, वो तीनों चीजें इंसिडेंस, नॉर्मल एंड इवन दो यू गोज विद व्हाट द सेकंड थिंग एज रिफ्लेक्शन. सो ये सब आपका आ जाता है, और ये तीनों चीजें जब बनती हैं या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म होती है, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट प्लेन पे फॉर्म होती है. एंड सेम मीडियन विच आई मीन पॉइंट, आई एम गोइंग टू शो दिस विद द ब्लैक कलर. सेम प्लेन पर, सेम पॉइंट पर ये तीनों चीजें फॉर्म होती हैं. अगर 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 बाय मिस्टेक आपने इंसिडेंस रे ऐसे बना दी है, रिफ्लेक्शन रे ऐसे बना दी है, लेट मी शो यू अगेन. ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है एग्जाम में कि दिस इज योर इंसिडेंस रे, दिस इज योर रिफ्लेक्शन रे एंड दिस इज योर नॉर्मल. अब आपसे कहा गया है कि क्या ये रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है. Your answer goes and really comment in the comment section is no, no, no. ये आपके रिफ्लेक्शन को शो नहीं कर रहा है, और ये चीज आपको माइंड में रखनी है एंड बहुत ही अच्छी तरह से इसे समझना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगी, जो कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और angle of incidence, angle of normal and even though angle of reflection will always lie on a plane surface with the respect to the same point. Remember this very very star point. इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि दोनों चीजें एक दूसरे से कंबाइंड हैं, इसीलिए मैं कह रही थी क्योंकि जब एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगी और तीनों चीजें जो कि इंसिडेंस है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्शन है, वो एक सेम पाथ, सेम प्लेन, सेम पॉइंट पे होगी, तभी आपका ये रिफ्लेक्शन को शो होगा. अगर आप इन दोनों में से एक चीज प्रेजेंट है, एक चीज एब्सेंट है, एक लॉ प्रेजेंट है और दूसरा लॉ एब्सेंट है, तब भी ये आपके रिफ्लेक्शन को नहीं शो करेगा. अगर आपके दोनों लॉज एप्रोप्रिएट हैं और बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल है, तभी आप रिफ्लेक्शन को शो कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट रिफ्लेक्शन, देयर बेसिक डेफिनेशन and their laws of reflection 1 and 2. Now, as we have seen, now I'll be back with telling you about the nature and somewhat about in the reflection only. We'll talk about a spherical mirror and somewhat their small numericals with the ray diagram. So, and after that we'll talk about refraction and the just third topic about no more. So, before going to be in this video, I just recommend you to share this video so your friends can also get benefit from this particular chapter, as I really again want to tell you this chapter is really very easy. Only the term, only the word needs to be understood by you and somewhat the smallest gist you need to understand. बाकी सब आपको बहुत अच्छे से आता है. लाइट के बारे में भी आप जानते हैं, रिफ्लेक्शन भी जानते हैं, रिफ्रैक्शन भी जानते हैं. बस आपको जो इसमें टर्म्स यूज हुए हैं उससे आपको जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चैप्टर आप लोगों के लिए लाई.
एज पर योर पर्टिकुलर डिमांड। एंड अगर आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए, किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट में जरूर लिखिए। एंड आई प्रॉमिस टू यू, मैं पक्के से पक्का इसे बहुत जल्दी से जल्दी जो भी आपकी पर्टिकुलर डिमांड होगी इस पर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी। अगर एक बहुत अच्छी सी बड़ी सी प्रॉब्लम होगी या फिर अगर छोटी सी होगी तो मैं वो उसे कमेंट में ही सॉल्व करने की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।